हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप ऑल ऑफ यू डूइंग वेल एंड फाइन। माई सेल्फ लोहित जिंदल एंड आई वेलकम you all in our next session of INMO flashback series, guys. So guys, in this series we are solving previous year INMO questions. Okay, and we start in each video we are solving one question, right? And we started with the year 2000, and so far we have completely done till 2015, and currently we are going through the INMO 2016, right? So far guys, first two questions हम कर चुके हैं INMO 2016 के. Today we are going to do the third question of INMO 2016. Okay, so it's a very interesting question. Number theory, algebra आप कह सकते हो. It's kind of a number theory thing and functional function thing. ठीक है, मिक्स सा है कुछ. ठीक है, so very interesting question, very good question, logical question, है ना. तो उसको डिस्कस करते हैं. ओके, बिफोर बिगिनिंग लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ. माई नेम इज लोहित जिंदल. आई हैव डन माई बीटेक फ्रॉम IIT Bombay and I've been teaching mathematics for the past 9+ years since graduating for various competition exams like IIT JEE, KVPY, Mathematics Olympiad, etc. Right? Okay guys, चलो देखते हैं क्वेश्चन को. Right? Let me show you the question. And as always मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा guys, please try this question beforehand. है ना, वीडियो कंप्लीट वीडियो देखने से पहले इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई करो. Okay, so that you are able to understand it much better when you watch the solution, right? तो इस क्वेश्चन को पहले खुद से ट्राई करो, इसको 1-1.5 घंटा का टाइम दो, ट्राई करो. हो जाएगा then that is well and good. अगर नहीं होता है then this after that watching the solution 1 घंटा अगर आपने attempt कर दिया, then if you watch the solution you'll actually get to learn so many things from it. Okay, that is the important point. Okay, so please pause the video and try this question. All right, so guys I hope सबने ट्राई कर लिया इस क्वेश्चन को. Okay, and now let us discuss this question. What does it mean? Okay, so guys क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है let n, capital N, denote the set of all natural numbers. Okay, define a function t, एक function t है, from natural number to natural number by this way so that t of 2k is k. मतलब अगर आप even number डालते हो तो वो आधा कर देता है उसको, right? If you are inputting the value 2k, it's giving out the value of k, है ना. and if t of 2k plus 1, अगर आप odd number डाल रहे हो 2k और 2k plus 1 देने का मतलब क्या हुआ, मतलब अगर आप even number input करते हो you get the half of it, output is half of the number. and अगर आप odd number input करते हो the output is 1 greater than that, the next integer. Okay, and they are defining that t to t square of n means t of n, composite function बन रहा है. Okay, so if it is t3 of n it means t of n. Okay, so composite functions चल रहे हैं. and in general tk of n is obviously equal to tk minus 1 of t of n. of course that is what it means, right? क्योंकि बार बार आप कंपोजिट करते जाओगे तो ये फॉर्मेट बन गया फॉर एनी k ग्रेटर देन 1. ठीक है, सो दैट इज ऑल दैट इज डिफाइंड नाउ. सो फंक्शन आपको समझ में आ गया. इवन नंबर इनपुट करते हो तो हाफ हो जाएगा, ऑड नंबर इनपुट करोगे तो +1 होकर आउटपुट मिलेगा आपको. नाउ दो लेट अस सी द फर्स्ट पार्ट. फर्स्ट पार्ट क्या कह रहे हैं, ओके उसको सॉल्व करते हैं. Okay, one by one we'll see it. First part asks us to show that for each n belongs to natural set, कोई भी input जो हम n number अगर pick करते हैं which is in the natural set, there exists k, कोई ऐसा k होगा such that t k of n is 1. मतलब अगर आप एक n pick करते हो, कोई भी natural number n, मैं आपको example देके बता देता हूँ. Let's say, ठीक है गाइज, ऐसे क्वेश्चंस को प्रूव करना हो ना तो आप यू कैन ऑलवेज गेट अ सिंपल एग्जांपल, पिक इट अप एंड ट्राई टू सॉल्व इट, है ना. करने की कोशिश करो एक एग्जांपल नंबर लेके छोटा सा. लेट्स से कोई नंबर पिक कर लेते हैं 6, है ना. 6, लेट अस से वी पिक्ड n इक्वल टू 6. सो व्हाट विल हैपन, t ऑफ n कितना आ जाएगा, व्हाट विल बी t ऑफ 6, इवन नंबर है, हाफ हो जाएगा, 3 हो जाएगा. सो दैट इज 3, राइट. नाउ व्हाट इज t2 ऑफ 6, मतलब दैट इज सेम एज t ऑफ 3 ना, क्योंकि t square of 6 का मतलब है t of 6, but we know t of 6 is 3 जो हमने देखा अभी. so t of 3 is equal to 4, odd number है तो +1 हो जाएगा, 4 हो जाएगा. so you are getting the concept. so t cube of 6 is equal to t of 4, right? क्योंकि t square of 6 की वैल्यू 4 आ रही है. now t of 4 is half हो जाएगा, 2 हो जाएगा. now similarly t4 of 6 मतलब t of 2 होगा which is equal to 1. odd है, even है तो उसका हाफ हो गया 1. so you see applying this step 4 times, अगर आपने 4 times composite function किया t of 6, you are eventually getting to 1. ठीक है, मतलब 4 steps लगे. तो यही चीज यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में बोला जा रहा है to prove it that for any number n, for each number n, मतलब हर नेचुरल नंबर के लिए there will exist some k,
है ना, मतलब कोई ना कोई फाइनाइट वैल्यू होगी, सो दैट व्हेन यू डू दैट प्रोसेस एटलीस्ट k टाइम्स, मतलब नॉट k टाइम्स, हाँ, जब आप उस ये प्रोसेस k टाइम्स करोगे उस इंटीजर के लिए तो वो 1 आ जाएगा. लाइक आई टोल्ड यू फॉर द एग्जांपल ऑफ 6, इट टुक 4 स्टेप्स, 4 टाइम्स आपको करना पड़ा और 1 आ गया, राइट. सो लेट अस ट्राई एंड प्रूव इट. ठीक है. सो गाइस इफ वी टेक एनी n ग्रेटर देन 1, ऑफ कोर्स 1 के लिए तो दोबारा नहीं करना पड़ेगा ना. सो n ग्रेटर देन 1 के लिए बात करते हैं गाइस. ठीक है. सो विल मेक टू केसेस. इफ n इज ऑड, राइट, इफ n इज ऑड व्हाट इज गोइंग टू हैपन. ओके, लेट अस टेक n टू बी ऑफ द फॉर्म 2m plus 1. तो क्या होगा गाइस, t of 2m plus 1 that is odd, right, it will give you 2m plus 2, वो हमें पता है प्लस 1 हो जाएगा. एंड नाउ व्हाट इज t स्क्वायर ऑफ 2m plus 2, that is half m plus 1, right. हम ये चीज समझ पा रहे हैं. और नंबर क्या था, 2m plus 1. कैन आई से गाइस सिंपली, क्या मैं ये बोल सकता हूं, आफ्टर डूइंग 2 स्टेप्स दिस m plus 1 इज लेसर देन 2m plus 1. थिंक अबाउट इट, n की वैल्यू 1 नहीं है, सो दैट m कैन नॉट बी 0, है ना, m कैन नॉट बी 0 है, n इज ग्रेटर देन 1 की बात कर रहे हैं, so which means m is greater than equal to 1 here, right. So if m is greater than equal to 1, wouldn't I say that this m plus 1 is lesser than equal to 2m plus 1 minus 1, like उससे एक कम कर देंगे, मतलब जो हमने n की वैल्यू जो नेचुरल नंबर पिक की है उससे एक कम करेंगे अगर वैल्यू, है ना, उससे भी छोटी है ना. कैन आई से दैट m plus 1 is lesser than equal to 2m because m is greater than equal to 1 here. ये भी हमें पता होना चाहिए ना. कैन आई से दिस थिंग, है ना. t2 मतलब 2 स्टेप करने के बाद हमें वैल्यू मिलती है m plus 1 एंड आई एम क्लेमिंग हियर दैट m plus 1 is lesser than 2m. ये तो ट्रू है ना, बिकॉज दिस एक्चुअली गोज ऑन टू गिव यू m greater than equal to 1 ओनली. अगर आप एक m को उधर ले जाओगे यू विल गेट ओनली m greater than equal to 1 which is true. सो गाइज हम यहां से कहना क्या चाह रहे हैं, मतलब अगर आपका n ऑड है ना, देन अप्लाइंग द प्रोसेस 2 टाइम्स, मतलब वो t 2 बार करने के बाद what we are saying is after doing that step 2 times the output is at least 1 lesser than the given number, original number, input number. तो इनपुट नंबर से पक्के से 1 से कम हो ही जाएगा, है ना, मिनिमम है, उससे छोटा भी हो सकता है, राइट. राइट, आई विल गिव यू एन एग्जांपल है. देखो यहाँ पे सिमिलरली जो हमने एग्जांपल पिक किया था, मतलब 2 बार प्रोसेस किया हमने 6 पे, t स्क्वायर ऑफ 6 पे, यू सी वी गॉट 4 5 से छोटा है ना, 6 minus 1 is 4 5, उससे छोटा आ रहा है. इक्वल भी हो सकता था, इट विल बी इक्वल इन सम केस, बट अदरवाइज या तो इक्वल होगा उससे एक कम से, इधर इट विल बी लेसर देन either it will be equal to n minus 1 or lesser than that, है ना, बोल सकते हैं ऐसा. ओके, अगर आप n की टर्म्स में बात करते, wouldn't I have said okay what is m plus 1, m plus 1 को मैं क्या लिख सकता हूं, मतलब, या फिर अगर आप n की टर्म्स में बात करोगे आफ्टर 2 स्टेप्स this m plus 1 is less than equal to n minus 1. यही हम कहना चाह रहे हैं कि जो आउटपुट आ रहा है आपका that is lesser than equal to n minus 1, मतलब जो इनपुट नंबर था उससे एक कम, कि या तो इक्वल है उससे छोटा है. ओके, लेट अस सी व्हाट हैपेंस इफ n इज इवन, व्हाट, राइट, द अदर केस व्हेन n इज इवन, है ना. तो सिंपली लेट्स पिक n इक्वल टू ऑफ द फॉर्म 2m. नाउ व्हाट विल हैपन, t ऑफ 2m is equal to m, and can I simply say this m is less than equal to m 2m minus 1. अगेन सेम लॉजिक बन रहा है, n की वैल्यू 2m थी, उससे अगर मैं एक कम करता हूं तो ये m उससे, अगेन यहाँ पे m क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ठीक है ना, 2 या 2 से बड़े वाले की बात कर रहे हैं क्योंकि 0 तो नहीं होगा. सो इफ m इज 1 देन दे आर इक्वल, अदरवाइज इफ m इज ग्रेटर देन 1 then 2m minus 1 is of course greater than equal to m, है ना. और I can say this thing m is less than equal to n minus 1. इसमें भी यही आ रहा है. तो जब और था तो 2 स्टेप के बाद आ रहा है. अगर m इवन है, if n is even, then एक स्टेप के बाद ही जो आउटपुट आ रहा है वो ओरिजिनल नंबर का -1 होके, मतलब डिक्रीज हो गया है. बेसिकली व्हाट वी आर ट्राइंग टू से हियर इज द आउटपुट आफ्टर एट लीस्ट 2 स्टेप्स इज एट लीस्ट 1 लेसर देन द गिवन इनपुट नंबर. हम ये बोलना चाह रहे हैं कि कम से कम 2 स्टेप, ओके वी कैन से कि 2 स्टेप लगाने के बाद, है ना, एटमोस्ट 2 स्टेप के बाद जो आउटपुट आता है वो नंबर इनपुट नंबर से कम एक तो कम होता है.
है ना, कम से कम एक कम होता है, ज्यादा भी कम हो सकता है, लेकिन एक तो कम होता ही होता है, राइट? सो व्हाट डज इट मीन? व्हाटएवर बी द नेचुरल नंबर n, आफ्टर 2 स्टेप्स द आउटपुट इज एटलीस्ट 1 लेसर देन द इनपुट नंबर। तो हम ये बोल सकते हैं हर दो स्टेप के बाद वी कैन क्लेम दैट एटलीस्ट एक से कम हो जाता है। सो इफ आई डू दिस प्रोसेस आफ्टर 2 स्टेप्स, हम क्या बोल रहे हैं, आफ्टर 2 स्टेप्स, मैं लिख देता हूं, द आउटपुट इज एटलीस्ट 1 लेसर देन इनपुट नंबर, राइट? सो ये हो रहा है। सो आफ्टर 2 स्टेप्स एक से कम पक्का हो जाएगा नंबर से, और अगर आपको 1 तक आना है, इसका मतलब n-1 सबट्रैक्ट करना है। सो वी कैन से दैट k कैन बी लेसर देन इक्वल टू 2 टाइम्स n-1। मतलब अगर ये मैं प्रोसेस n-1 टाइम्स कर दूं, 2 टाइम्स n-1, क्योंकि 2 स्टेप में एक से कम होता है, अगर n-1 कम करना है तो 2 टाइम्स n-1 स्टेप्स इज द मैक्सिमम दैट कुड बी रिक्वायर्ड टू reach to 1, right? This is the maximum number of steps to reach so that t of k of n reaches 1. ठीक है, हम ये नहीं कह रहे कि k की अपर बाउंड है। अपर बाउंड का मतलब यहाँ पे ये कोई भी नंबर अगर आप उठाते हो तो उसको मैक्सिमम से मैक्सिमम 2 टाइम्स n-1 स्टेप्स लग सकते हैं, अदरवाइज जनरली उससे कम ही लगेंगे। जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल 6 के लिए दिखाया, 6 के लिए 4 स्टेप्स लगे, है ना? तो 2 टाइम्स n-1 वुड बी लाइक n-1 इज 5, इसका मतलब 10, मैक्सिमम 10 हो सकते थे, बट 4 में ही हो गया, राइट? दैट इज व्हाट इट मींस। इट्स नॉट दैट कि इतने लगेंगे ही लगेंगे, बट इट इज काइंड ऑफ द मैक्सिमम बाउंड दैट कैन हैपन, राइट? ठीक है ना? तो ये आइडिया समझ में आ गया सबको, राइट? सो 2 टाइम्स n-1 इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ k दैट कैन एग्जिस्ट। उससे मतलब उससे कम ही स्टेप्स में आ ही जाएगा 1, ठीक है? So that is the proof of the first part. We found the such a k, like, or the maximum value of k which can happen, and it will always happen. We proved that after 2 steps, whatever happens after applying this t 2 times, मतलब है ना, कम से कम 2 बार जब आप फंक्शन को यूज कर देते हो, वो आप कह सकते हो वो फंक्शन अप्लाई कर देते हो, है ना, तो क्या होता है, नंबर एटलीस्ट जो भी इनपुट था उससे कम तो होगा ही होगा, और एक से कम हो जाता है, कम से कम एटलीस्ट एक से कम हो जाता है, ज्यादा भी कम हो सकता है। लाइक अगेन 6 का एग्जांपल दिया था मैंने आपको, उसमें आपने 6 दिया था, 2 स्टेप के बाद 2 कम हो गया। एक्चुअली हमने बोला था कम से कम एक कम होना चाहिए, 5 आना चाहिए था, आ सकता था, बट 4 आ गया, और छोटा हो गया, और अच्छा इजी हो गया, कम स्टेप्स लगेंगे इसका मतलब। बट अगेन ये दिस इज द लॉजिक, हमने प्रूव कर दिया कि कम से कम 2 स्टेप लगाने के बाद कम से कम एक तो कम हो ही जाएगा, ज्यादा नहीं होगा तो। एंड सिंस आफ्टर अप्लाइंग सम स्टेप्स अगर वो डिक्रीज होता जा रहा है, इवेंचुअली इट विल रीच 1, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेप्स इज 2 टाइम्स n-1। आई होप दिस थिंग इज क्लियर, ठीक है? ये हो गया फर्स्ट पार्ट आपका कंप्लीट, दैट वाज द फर्स्ट पार्ट। नाउ लेट अस प्रूव द सेकंड पार्ट। नाउ सेकंड पार्ट इज क्वाइट इंटरेस्टिंग टू अंडरस्टैंड, ठीक है? लिखने में बहुत ज्यादा नहीं है, बट लेट अस सी। फॉर k बिलोंग्स टू नेचुरल सेट, अगेन लेट c of k denote the number of elements in the set, this set n, all those elements n और all those natural numbers such that उनके ऊपर अगर मैं k टाइम्स अप्लाई कर दूं तो 1 आ जाए, ठीक है? ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द ck। ck इज द नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स, ओके? ck denotes the number of elements in that set, with the set represents all those natural numbers जिनके ऊपर अगर मैं k टाइम्स अप्लाई कर दूं ये प्रोसेस तो 1 आ जाएगा, राइट? After applying the process k times, it will give me the output 1, कि k steps के बाद 1 आ जाएगा। So what we have to prove is, we have to prove this recurrence relation that ck plus 2 is equal to ck plus 1 plus ck. Now it is quite interesting guys, मैं ये बोल सकता हूं जो ck वाला सेट है, जो ck एलिमेंट्स हैं, उसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे? Can I say it has kind of 3 types of elements, जो भी एलिमेंट्स होंगे उसके 3 टाइप्स होंगे। क्या क्या होंगे? वन इज ऑफ द फॉर्म 4D, या फिर ऐसे लिखता हूं, वन इज ऑफ, या तो देखो ck क्या होगा, ऑड होगा, है ना? या तो ck क्या है, ऑड है। ck के अंदर क्या क्या तरह के एलिमेंट्स होंगे? कुछ ऑड एलिमेंट्स होंगे एंड कुछ इवन एलिमेंट्स होंगे, बट उसमें मैं डिमार्केशन कर रहा हूं या बाइफर्केशन कर रहा हूं। द इवन एलिमेंट्स आर ऑफ 2 टाइप्स, आइदर 4D plus 2 और 4D। ये 3 तरह के एलिमेंट्स होंगे विच कवर ऑल द एलिमेंट्स विच आर इन द ck सेट। मतलब ck सेट नहीं है लाइक, या ck इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स
है ना, इसका मैं नाम दे देता हूँ, कुछ और लिख देते हैं इसको, P ऑफ K लिख देते हैं, ठीक है। P ऑफ K इज द सेट, ओके। CK denotes the number of elements in it, ये बोल देते हैं ना, CK represents number of elements in this set. So guys, अब P of K के अंदर, मतलब जिसको K स्टेप्स लगेंगे, उसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, ऑड है, इवन है, और इवन में कौन कौन से हैं, 4D + 2 और 4D फॉर्म के होंगे, राइट। नाउ थिंक अबाउट इट गाइस, व्हेनेवर यू डू, मैं यहां पे लिख के दिखा देता हूं, व्हेनेवर यू डू T ऑफ ऑड, है ना, ऑड n, मैं n लिख देता हूं वेयर n इज ऑड, इट विल गिव यू n + 1, यहां पे n क्या था, ऑड है, ठीक है। जब भी आप ऑड नंबर इनपुट करते हो वो +1 करके दे देता है, एंड दिस n + 1 इज गोइंग टू बी इवन, राइट, गेटिंग दिस पॉइंट। सो अगर आपके पास कोई ऐसा नंबर है Tk ऑफ n है विच इज गेटिंग टू बी 1, इट इज इक्वल टू Tk - 1 ऑफ n + 1, है ना। मतलब जो Tk - 1 सेट के अंदर जितने भी इवन एलिमेंट्स हैं, है ना, जो T ऑफ K के अंदर, मतलब जिसके ऊपर K स्टेप्स लगाने पड़ते हैं, उसके अंदर जो भी ऑड नंबर है ना, उसमें +1 करके जितने भी इवन नंबर आएंगे वो K - 1 सेट के अंदर होंगे, those should be lying in P of K - 1। ये ऑड से n + 1 वाले सारे एलिमेंट्स आ गए विच आर इवन हियर, तो इस सेट के सारे इवन एलिमेंट्स आपके पास यहां पे आ गए K - 1 वाले सेट के अंदर, राइट। तो K - 1 वाले के अंदर सारे इवन नंबर्स काउंट हो गए आपके, ठीक है। सिमिलरली व्हेन यू अप्लाई Tk of 4D + 2, है ना, दिस इज इक्वल टू T of K - 1 2D + 1, क्योंकि आधा कर रहा है ना, 4D + 2 इज इवन, उसका आधा हो जाएगा, ओके, दिस इज 1, ठीक है। K सेट के अंदर जो भी इवन नंबर होंगे विच आर ऑफ द फॉर्म 4D + 2, जो भी होंगे जिससे 1 आता हो K स्टेप्स के बाद, तो K - 1 स्टेप्स के बाद उसके आधे वाले नंबर सारे अंदर पड़े होंगे, उसके अंदर K - 1 सेट के अंदर इसके सारे 2D + 1 एलिमेंट सारे के सारे आ गए, राइट। सो K - 1 सेट के अंदर जितने भी हैं वो 2D + 1 ऑड वाले और इवन वाले सारे काउंट हो गए, राइट, वो ऑड वाले और इवन वाले सारे काउंट हो गए। सो आई एम राइटिंग हियर ऑन द साइड हियर, ओके। सो दैट मींस CK के दो पार्ट्स थे, ऑड वाला और 4D + 2 से आपको CK - 1 तो मिल ही गया, क्योंकि उन दोनों से जितने भी एलिमेंट्स आएंगे, आउटपुट्स आएंगे, वो सारे K - 1 के अंदर आ रहे हैं, तो K - 1 वाले के अंदर सारे ऑड और इवन काउंट हो गए आपके ऑलरेडी, ठीक है। हाँ, आपके मन में एक डाउट आ सकता है कि सर n + 1 और 4D का हाफ करके भी तो 2D आएगा, वो भी तो इवन आएगा। गाइस द पॉइंट इज, अगर 4D का हाफ करके जो 2D आएगा वो सारे एलिमेंट्स n + 1 में ऑलरेडी काउंटेड है, दोज आर ऑलरेडी काउंटेड इन n + 1, क्योंकि n + 1 इवन है, 4D का हाफ 2D भी इवन है, वो काउंटेड है ऑलरेडी n + 1 के अंदर। सो इट विल बी मल्टीपल काउंटिंग, अगर मैं ऐड कर दूंगा, सीधा सीधा लिख दूं CK = CK - 1, दैट इज इनकम्प्लीट, राइट, क्योंकि उसके भी ऑड और इवन तो आ गए, वो जो K - 1 के ऑड और इवन एलिमेंट्स मिलेंगे वो मुझे सिर्फ K वाले सेट के अंदर ऑड और 4D + 2 वाले से ही मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो 4D वाला बचा हुआ है अभी भी, उसका क्या होगा, इसके लिए मुझे देखना पड़ेगा कि 4D से कौन से मिलते हैं, राइट। नाउ अब गाइस 4D का क्या करें, नाउ व्हाट इज Tk ऑफ 4D, ये अब यहां पे बात समझने वाली है, बड़ी इंटरेस्टिंग है। Tk ऑफ 4D इज इक्वल टू T ऑफ K - 1 ऑफ 2D, इवन है अभी भी, तो उसके ऊपर फिर से अप्लाई हो जाएगा, सो T ऑफ K - 2 ऑफ D है। D कैन बी इधर इवन और ऑड, राइट, D कैन कवर ऑल द वैल्यूज इवन और ऑड, मतलब P ऑफ K - 2 के अंदर ये 4D से D आ रहा है, where D is even और odd, है ना। थोड़ा स्क्रॉल डाउन कर देता हूं, ये जो D की वैल्यू है ये क्या है, ऑल ऑड एंड इवन, आप ये बोल सकते हो, दिस D कैन बोथ बी इवन और ऑड, ठीक है। तो ये वाला जो D वैल्यू वो सारा सेट बना देगा, K ऑफ K - 2 के सारे ऑड और इवन वाले इसी 4D से आ जाएंगे, ठीक है। सो दैट मीन्स दैट CK, अब CK पूरा का पूरा कवर हो गया ना, वी हैव कवर्ड ऑल द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ PK, P ऑफ K सेट, उसके ऑड वाले और 4D + 2 वाले फॉर्म से तो सारे के सारे एलिमेंट्स वो मिल गए जो P ऑफ K - 1 के अंदर है। सो CK इज इक्वल टू CK - 1 प्लस जो 4D वाले फॉर्मेट के हैं वो सारे के सारे एलिमेंट्स किस में लाई कर रहे होंगे, K - 2 में, उतनी एलिमेंट्स
p of k minus 2 में होंगे, so that is p of c of k minus 2, right? So now you can simply substitute k as k plus 2, है ना, वो हम कर सकते हैं to make it simpler, so that k starts from 1, है ना, यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं ऐसे लिखूंगा k को अगर 1 से स्टार्ट करूंगा फिर तो k minus 2 नेगेटिव हो जाएगा. So putting k को k plus 2, this expression will change to c of k plus 2 equal to c of k plus 1 plus ck, and that is the expression that we needed to prove. Here the k is greater than equal to 1, है ना, तो ये आंसर बन गया हमारा, प्रूव हो गया. ck plus 2 is equal to ck plus 1 plus ck. It's like a Fibonacci sequence. सिमिलर एक्सप्रेशन ही आ गया. हाँ, इसमें c1 और c2 की वैल्यूज ढूंढ सकते हो. c1 की वैल्यू क्या आएगी, मतलब एग्जैक्टली एक स्टेप के बाद ही 1 आ जाए. देयर इज ओनली वन सच नंबर, दैट इज 2, है ना, क्योंकि या तो आप +1 करते हो, ऑड है तो +1 करते हो, इवन है तो हाफ करते हो. तो 1 कैसे आ सकता है एक स्टेप के बाद, अगर 2 रहा होगा, 2 को हाफ करने पे 1 आएगा ना. So C1 contains exactly 1 element, and what about C2? अच्छा, मतलब 2 स्टेप के बाद कितने डिजिट, कितने नंबर्स ऐसे हैं जिनके ऊपर 2 स्टेप लगाने के बाद 1 आ जाए. तो एक तो क्या होगा, कौन सा हो सकता है, 4 हो सकता है ना. 4 को क्या करोगे, 4 का हाफ किया 2 हो गया, फिर से इवन है, फिर से हाफ हो गया 1 हो गया. C2 इज 1, एक तो 4 आ गया उसके अंदर, और कोई डिजिट है उसके अंदर, आई डोंट थिंक सो, है ना. 2 स्टेप के बाद 1 आ जाए तो क्या हुआ होगा, लास्ट स्टेप पे तो 1 ही, डबल यू हाफ ही होगा ना, 1 के बाद 2 आया होगा. अब 2 कैसे आया हो सकता है, वो तो केस मानेंगे नहीं ना कि पहले से 1 था, +1 कर दिया उसमें, है ना. सो C2 ऑल्सो इज 1, है ना. सो C1 C2 आर 1, सो देन इट स्टार्ट्स दैट C3 इज C1 प्लस C2, 2 आ जाएगा, एंड सो ऑन, राइट. कि 3 स्टेप के बाद कितने आएंगे, है ना, या तो 3 होगा या फिर 8 होगा, जैसे उसमें 2 ही एलिमेंट्स आएंगे ऐसे. So on you can form the series, and this is the proof, है ना, कि एक्सप्रेशन का कैसे प्रूव होगा. We prove it like this, कि डिफरेंट केसेस लेके, odd 4d plus 2 and 4d वाले केसेस अगर आप लेते हो तो ये पॉसिबिलिटीज बनती हैं, एंड ऑल आर कवर्ड इन दैट, ठीक है. So that was the third question of INMO 2016 guys. I hope this question was clear. ओके, जरूरत पड़े तो गाइस दोबारा देख लेना, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा लग सकता है सेकंड पार्ट में, क्योंकि वो रिकरेंस फॉर्म करना है आपको रिलेशन. सो प्लीज ट्राई टू थिंक अबाउट इट, टेक सम नंबर्स, टेक सम एग्जांपल्स, आपको आइडिया बेटर क्लियर हो जाएगा, ठीक है. क्योंकि कोई गाइस देखो, सिंपल सी बात है, कोई भी इवन नंबर अगर p ऑफ k माइनस 1 के अंदर पड़ा है, कोई भी इवन नंबर अगर पड़ा है, वो ऑलरेडी ऑड प्लस 1 से ही आया होगा ना, या फिर 4d से भी आया हो सकता है. तो दोनों नंबर ही p ऑफ k में पड़े होंगे ना. तो लेकिन हमने सिर्फ ऑड वाले से ही काउंट किया, और जो इवन वाले हैं 4d फॉर्म के हैं, उनका 2 बार हाफ करने के बाद, क्योंकि वो 2d आएगा, वो p ऑफ k माइनस 2 के अंदर पड़े होंगे सारे के सारे, और p ऑफ k माइनस 2 के अंदर सारे ऑड और इवन कवर हो जाएंगे इस तरह से. नो अदर नंबर कैन बी यू नो अवेलेबल देयर, कि जो k माइनस 2 से कोई और नंबर आता हो, क्योंकि अगर आया हुआ उसको वापस p ऑफ k में तो लेके जा सकता हूं ना, उसको 2 टाइम्स कर करके, ठीक है ना. तो दैट्स व्हाई देयर कैन नॉट बी एनी सच एलिमेंट इन p ऑफ k माइनस 2 व्हिच इज, जिसका डबल 2 बार करने के बाद उसका 4 टाइम्स p ऑफ k में ना पड़ा ही होगा फिर. तो इसलिए फॉर एवरी 4d ऑल द डिजिट्स इन द p ऑफ k माइनस 2 विल बी अवेलेबल फ्रॉम 4d, उसका 1/4 करके आ ही जाएंगे, सारे आ जाएंगे, d की जो मर्जी वैल्यू डाल दो यहाँ पे हो जाएगा, राइट. सो दैट इज द कॉन्सेप्ट हियर. सो टू फॉर्म द रिकरेंस रिलेशन ck plus 2 is equal to ck plus 1 plus ck, that's it. Okay, so guys I hope this question is clear, and I will suggest guys थोड़े नंबर पिक करके और डाल के देखो कुछ नंबर्स के लिए, so that you get a good idea. At least you know 10 तक के n की वैल्यूज फ्रॉम 2 to 10 के लिए, सबके लिए कुछ कुछ लिख के देखना, you'll get a good insight into the question, ठीक है. so वो आपको फायदा देगा. Okay, I hope guys this question was understood by all, है ना, and I hope you learned something from it. We'll see you in the next video. We are halfway through the INMO 2016. हमने 3 questions कर लिए हैं. In the next video we'll be coming back with the 4th question. Okay, so stay tuned. We'll see you in the next video. Till then, bye bye guys, good night and take care and all the best. Bye bye. ISI aspirants, whereas for the JEE aspirants, मैं आपको guys एक अच्छा सा मतलब एक बताना चाहूंगा कि ये एक एग्जाम है जिसके बारे में जनरली काफी लोगों को पता भी नहीं होता, है ना. एंड अदर देन दैट JEE aspirants को फायदा क्या है, क्योंकि इसका सिलेबस कोई ज्यादा डिफरेंट नहीं है. ISI का सिलेबस इज नॉट एट ऑल मच डिफरेंट फ्रॉम JEE मैथ्स. रादर इस पेपर में तो सिर्फ मैथ्स ही आएगा, फिजिक्स केमिस्ट्री तो नहीं आएगी JEE एस्पायरेंट्स के लिए, सिर्फ मैथ्स है, राइट. एंड हाउ इज इट यूजफुल, इज इट्स लाइक ब्रॉडनिंग योर होराइजंस, है ना. आप JEE के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हो, आप साथ में अगर ये भी प्रिपेयर कर रहे हो,
लेट्स से इसके अंदर अच्छा स्कोर आ जाता है, यू कैन एक्चुअली फिगर आउट कि हाँ क्या पता आपको मैथ्स में इतना इंटरेस्ट है, यू माइट ऑप्ट फॉर दिस थिंग अगर आप इसमें सेलेक्ट हो रहे हो, राइट। Other than that, it will also help you in JEE aspect as well, because इसके अंदर हम इतने questions करेंगे, methods discuss करेंगे, all those methods and all will also be beneficial for you in JEE as well. वो methods तो same ही होंगे ना, maths तो maths है ना। So the syllabus is pretty much overlapping, and मैं अभी next slides के ऊपर आपको वही बताऊंगा कि syllabus किस तरह से overlap करता है ना, so that आपको एक idea मिल जाएगा। सो जेई एस्पायरेंट्स को ज्यादा टाइम भी वेस्टेज नहीं होगा, बिकॉज इट इज एक्चुअली रेलिवेंट फॉर देम इन जेई एज वेल, तो उनके लिए टाइम वेस्टेज नहीं साबित होगा ये कोर्स, राइट, इफ दे आर ऑप्टिंग फॉर इट। रादर वो आईएसआई के को भी एग्जाम को भी दे पाएंगे, बिकॉज उनको एक आइडिया लग जाएगा आप लोगों को कि आईएसआई में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, है ना, और किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं। एंड गिविंग द टेस्ट एंड ऑल विल हेल्प यू इन बोथ द एस्पेक्ट्स, जेई एज वेल एज आईएसआई एग्जाम एज वेल, इफ यू आर गोइंग टू गिव इट। ओके, इट इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम 28th of November। तो गाइज मैं इसके टॉपिक वाइज वेटेज के ऊपर आ जाता हूँ, ऑल्दो वेटेज के ऊपर हम बात नहीं करेंगे, आई एम जस्ट गोइंग टू टॉक अबाउट, बिकॉज वेटेज के ऊपर अभय सर ने वो वीडियो के अंदर बात की हुई है, जो कोर्स का वीडियो है पहले सर ने जब अनाउंस किया था, बट आई एम ट्राइंग टू टॉक अबाउट द टॉपिक्स। जो टॉपिक्स आए हुए हैं वो आपके जेई के साथ कैसे मैच करते हैं, बिकॉज मोस्ट ऑफ यू गाइज मस्ट बी प्रिपेयरिंग फॉर जेई हु आर वाचिंग दिस वीडियो, राइट। I'm going to circle the topics basically जो जेई में नहीं है, because जेई के अंदर जो टॉपिक्स है वो तो सारे ही हैं, है ना, because you can see matrices and determinants is there, conic section is there, straight lines, definite integration and area, है ना, sequences and series, trigonometry, application of derivatives and complex numbers, all these topics are already in JEE syllabus। sets and functions होता है, PNC होता है, permutations and combinations, LCD, limits, continuity and derivability, geometry and polynomials। हाँ, यहाँ पे डिफरेंस आता है गाइस, द ओनली टू टॉपिक्स जो जनरली जेई के अंदर अब नहीं आते, एज सच डायरेक्टली जेई के अंदर नहीं आते, दैट इज ज्योमेट्री, दैट इज यूक्लिडियन ज्योमेट्री, नॉट द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, है ना। कोऑर्डिनेट यहाँ पे कवर हो गया है, कोनिक्स एंड स्ट्रेट लाइंस एंड ऑल सर्कल्स वगैरह। एंड देन द अदर थिंग इज नंबर थ्योरी, विच इज बेसिकली एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ, यू नो, आईएसआई का एक इंटीग्रल पार्ट है, 10% वेटेज आप देख सकते हो क्वेश्चंस में, एंड अदर मैथ्स ओलंपियाड के अंदर भी हम इसको बहुत रिगुलसली टीच करते हैं। So guys, these two topics, number theory and geometry, actually these are very rigorously taught in mathematics Olympiad as well, है ना। तो ये दो टॉपिक्स ऐसे हैं which constitute of about 17-18%, है ना, इन दोनों को ऐड करोगे तो मिसलेनियस में भी कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो थोड़े मैथ्स ओलंपियाड के रिलेटेड होते हैं, तो अबाउट 17-18% का जो रेशो है वो ओलंपियाड मैथ्स का है, जो कि जेई के अंदर नहीं होता है। सो एज आई वाज सेइंग, जो आईएसआई एस्पायरेंट्स हैं उन्होंने तो ये टॉपिक्स कवर कर रखे होंगे, वेयरएज जेई एस्पायरेंट्स ने ये टॉपिक्स नहीं कवर कर रखे होते हैं। सो इफ यू आर एनरोलिंग इन आवर बैच, ये दोनों टॉपिक्स भी अच्छे से कवर किए जाएंगे, सो इट विल हेल्प यू अ लॉट इफ यू आर गोइंग टू गिव द आईएसआई एग्जाम, राइट। तो ये जो दो टॉपिक्स हैं, दीज आर आउट ऑफ द +1 +2 क्लास 11th and 12th क्लास सिलेबस, एंड दीज वी विल बी कवरिंग इन द सेशंस एज वेल, इनके क्वेश्चंस एंड ऑल, राइट। सो आप देख सकते हो यहाँ पे प्रैक्टिकली 80 to 83% of the syllabus is overlapping with the JEE and ISI. There's an overlap, है ना, या फिर आप ऐसा कह सकते हो ISI का जो 80%, 80 to 83% of the syllabus है, that is same as JEE. So your majority part is covered for you, है ना, आपने कवर कर रखे हैं basis. The only difference is these two chapters, number theory and geometry, जो कि हम अपने सेशंस के अंदर आपको कवर भी करेंगे, right? So you'll not face that much difficulty if you're opting for this course, right? तो अगर आप किसी भी एक सेगमेंट में हो, लाइक यू आर प्रिपेयरिंग फॉर जेई एंड नॉट फॉर आईएसआई, तो आप कर सकते हो आईएसआई के लिए विद अ स्मॉल एफर्ट, एंड एनीवेज दिस नंबर थ्योरी एंड ज्योमेट्री दैट विल बी डूइंग विल एनीवेज इनडायरेक्टली हेल्प यू इन जेई एज वेल। ऐसा नहीं है कि उसका कोई काम नहीं है जेई के अंदर भी, वो आपको इनडायरेक्टली जेई के अंदर भी हेल्प करेंगे, राइट। ओके, दैट इज अबाउट द टॉपिक वाइज वेटेज, रादर कि क्या क्या सिलेबस ओवरलैप करता है, राइट। आफ्टर दिस गाइज, एज आई सेड कि क्लास वाइज क्या क्या वेटेज है, लाइक 18.8% ऑफ ओलंपियाड मैथ्स जो मैंने आपको अभी बताया, लाइक नंबर थ्योरी एंड ज्योमेट्री है मेजरली इसके अंदर जो कॉन्स्टिट्यूट होता है, बाकी सब तो आपका 11th और 12th क्लास के सिलेबस के अंदर इंक्लूडेड है। सो यू कैन सी कंबाइंड दे गेट अबाउट 81.2%, राइट। सो क्लास 12th का सिलेबस 36-37% है और 44.7% 11th क्लास का सिलेबस होता है, दैट इज आईएसआई सिलेबस, राइट। सो अगर आप 11th-12th कर चुके हो, दिस कोर्स इज बेसिकली मेंट फॉर 12th क्लास स्टूडेंट्स जो भी 12th में है प्रेजेंटली और उनका सिलेबस बेसिकली कंप्लीट हो गया होगा। सो बेसिकली दे हैव कवर्ड कंप्लीट 11th and 12th क्लास सिलेबस, उनके लिए है, या फिर इफ समबडी इज ड्रॉपिंग एन ईयर और सो 13th क्लास में है एक तरह से कोई अगर, तो उसके लिए एक कोर्स रेलिवेंट है। दिस कोर्स इज नॉट मेंट फॉर 11th क्लास स्टूडेंट्स एज ऑफ नाउ, राइट, बिकॉज उन्होंने 12th वाली चीजें नहीं की होंगी,
Although if somebody wants to learn it, like फिर वो है कि अगर कोई 11th क्लास का स्टूडेंट ISI प्रिपेयर कर रहा है तो इस कोर्स को ऑप्ट कर सकता है, बट द थिंग इज he might not understand the topics where the 12th class syllabus is being covered, so he'll have to manage by themselves, right? Okay, that is the weightage aspect. And now coming to the highlights of the course के अंदर क्या क्या होगा, as I told you guys, there will be like 28 November से start, or as I told you, and there will be 60 lectures in total. So every day, practically every day there will be class, and the timings would be 3 p.m. to 4:30 p.m. So in case you have some prior commitment on some days at 3 to 4:30, you can basically watch the replay for those days, है ना, वो भी कर सकते हो if you're opting for this course. So daily live lectures हैं, barring some holidays in between जो आती हैं, है ना, December end पे कुछ holidays होती हैं तो वो छोड़ दो, लेकिन but basically it is going to have you're going to have one lecture every day, ठीक है, तो ये होगा. And overall in the 60 lectures you'll be also giving 15 tests, total of 15 tests. Some might be part test or full test, everything, right? But total 15 tests होंगे आपके, which will give you ample practice for the upcoming ISI admission test, है ना. And for every lecture, for every of the 60 lectures, you'll be getting an assignment as well. Daily assignment, छोटा सा assignment होगा जिसके लिए आपको बहुत ज़्यादा time नहीं देना पड़ेगा. You don't have to carve out time from your JEE and all इसके लिए specially. So you can say 1.5 hour का session है और उसके साथ में half an hour, maybe 1 hour maximum for the assignment every day. So 2.5 hours के अंदर आपका ISI प्रिपेयर हो जाएगा साथ साथ में, एंड अलोंगसाइड दैट विल हेल्प इन एनीवेज. जेई के अंदर तो सेम आता ही है, तो वो हेल्प करेगा ही करेगा. सो इट्स लाइक बोथ वेज आपका यूज हो जाएगा. वो जो आप 2-2.5 घंटा रोज लगाओगे, इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू इन बोथ एग्जाम्स, ISI एज वेल एज जेई. जेई एस्पायरेंट्स ये ना सोचे हम इसके ऊपर 2.5 घंटा लगा रहे हैं तो हमें फायदा नहीं है कोई, तो जेई में भी वो हेल्प करेगा ही करेगा, राइट. एंड एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, द टारगेट ग्रेड इज क्लास 12th एंड 13th. 12th class students जो भी 12th class के end पे हैं, और 13th class students like you over there who are dropping an year or so, ठीक है. So that basically आपका theory पूरा covered होना चाहिए. You should be knowing the theory because we don't have the time in these 60 lectures to cover the theory portion extensively. So हम just skim through करेंगे, revise करा देंगे ऊपर से 5-10 मिनट में, और बाकी के टाइम के अंदर हम questions करेंगे उसके pertaining, right? So that will give you a very good practice for ISI exam, right? So guys, these are all the details about the course, ठीक है. So coming about the pricing of the course, that is about 5,555 rupees 0.55 after discount. Total price, initial price was 2,000. So after discount it is 5,555. And if you apply the code LJ Pro, right, you can click it. आपको अलग से लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डिस्क्रिप्शन के अंदर जो लिंक है आप क्लिक करोगे, it will be automatically applied. So 10% additional discount आपको मिल जाएगा, and you will get this course. You'll be able to buy the course at 5,000 rupees. ठीक है. तो guys 60 lectures and many more things are being provided to you in this course. So 5,000 a very nominal price accordingly, है ना, जितना हमने उसके ऊपर वर्क किया है इस कोर्स के लिए, रिसर्च करके पूरे प्रीवियस पेपर्स के क्वेश्चंस भी इसके अंदर यूज किए हुए हैं, है ना, so that you get the proper idea as well. And many different countries exams is also used. So mathematics wise आप बहुत अच्छे से कंडीशन हो जाओगे उस एग्जाम के लिए, right? So that is it from my end, guys. So looking forward to see you guys in the class, है ना. If you opt for this course, you'll be able to see the sessions, slides and all once you enroll in that, right? Okay guys, that's it from my end. We'll see you in the classes. Hope to see you there. Okay, bye bye guys. Thank you from my end. Bye bye.